Oh. Okay. Yeah, somebody needs to confirm is if you are able to see the screen. Yes. Okay, great. Thank you. We started off with the chapter 1, and we're going to just wrap up the remaining things that we wanted to cover from chapter 1 today. The motivating example that we gave you when we started off chapter 1 was that 4 antenna problem. 4 antennas hain and 2 of them are faulty, 2 of them are working. So out of those 4, 2 antennas are working, 2 are faulty. You install those 4 antennas on a device in a row, and randomly install those antennas. So आपको पता नहीं है कौन सा पहली प्लेस पे जाएगा, कौन सा दूसरी पे जाएगा. So random installment of those antennas, 2 working, 2 faulty, onto the device. And the question was, will the device be working or not? And the condition that we stated for the device to be working is that if 2 faulty antennas are next to each other, adjacent to each other, then the device will not be working. Otherwise, it will be working. So what we did is that कि उसमें हमने कुछ काउंटिंग की. We saw कि उसमें 6 different possibilities बन जाती हैं. 3 में cases में काम करेगा, 3 में नहीं करेगा. And then we said कि the chances that you will pick one out of those three of those working combinations out of those 6 is 3 out of 6, which is 50%. तो हमने कहा कि this is reasonable to say कि the probability when you install these 4 antennas randomly on a device, the device will be working, which means no 2 bad antennas are adjacent to each other. That is 3 out of 6 or 1 out of 2 or 50%. Okay. So that's how you try to answer that probability question. And then we motivated that, in order to do this counting, ye 6 to humne manually list kar li. But if there are, too many antennas and too many of them are faulty, then you may not be able to do this manually. So you have to have some systematic way of counting different sort of arrangements, different sort of groupings. And we developed the theory for the basic counting principle that we saw. Then we also saw the permutations, and then we saw the combinations. Okay. And then all of these are tricks of the trade. So you solve a few problems and then you get a hang of it. Permutations ka ye matlab hai, combinations ka ye matlab hai. The more practice that you get, the more deeper understanding you will develop. There are other additional tricks of counting and problems that arise practically. And we started covering some of that last time, जिसमें हमने कहा कि we will talk about this. We talked about the multinomial law, that you have a large set of items and you want to divide that set of items into multiple groups. 6 groups में divide करना है और हर group का size दिया हुआ है. How many ways you can do that? So this kind of counting techniques, we developed the theory for that. Okay. Now, last time we were looking at the distribution of balls in urns, and I'm not going to write this again. So I will just quickly revise what we did last time, and then we will move forward from there. Okay. So what we did is that we said, okay, you wanted to distribute a set of balls in different boxes. So you have n balls. I'm going to circle it here. You have n balls, and out of those, or in those n balls have to be distributed in these r different urns. Okay. So first case would be, okay, these balls are distinct.
n distinct balls and r distinct boxes where you can put these balls. Okay, so पहली ball जो है उसके लिए भी r choices हैं. So you pick the first ball, you can put it in box 1, box 2, box 3, box r, किसी में भी डाल सकते हैं. Similarly, for the second ball, you have again r choices. Then for the third ball, r choices. So this would be total by using the basic counting principle. You have r multiplied by r multiplied by r, total n terms. N times you will have this r power n possible outcomes. कि हो सकता है कि सारी की सारी balls जो हैं वो एक ही में चली जाएं. Now, then we said कि what happens if you put the balls in the urns and randomly you will get one out of these. So what if these balls are not distinct, they are all the same, तो balls के बीच में हम distinguish नहीं कर सकते अब. So I can put any 3 balls in box number 1, any 2 balls in box number 2, any 7 balls in box number 3, and so on and so forth. But I will not be able to distinguish between the balls because they are all the same. पहले केस में तो वो balls के ऊपर numbers डले हुए थे, लेकिन दूसरे केस में उन पे कोई number नहीं डले हुए हैं. ठीक है? So what if these balls are not distinct? They all look the same. So then how many different arrangements you can get? One possibility is that कि आपके पास जो ये n balls हैं ये सब की सब एक ही बॉक्स नंबर 1 में चली जाएं. That's one possibility. बाकी सारे बॉक्सेस खाली रह जाएं और पहले बॉक्स में ये सारी बॉल्स चली जाएं. Okay. So some people are asking questions in I don't know. Yeah. So another possibility would be कि ये सारी की सारी जो n balls हैं इनमें से आधी बॉक्स नंबर 3 में चली जाएं और आधी बॉक्स नंबर 7 में चली जाएं. That's again one possibility. ठीक है. So इस तरह की कितनी different possibilities आपके सामने हो सकती हैं. ठीक है. So what we said is कि let's say कि xi is the number of balls in urn I. So ये आपके पास ये अर्न्स बने हुए हैं. सो ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, बॉक्स नंबर 3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बॉक्स नंबर r है. r अर्न बने हुए हैं. एंड xi इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन अर्न i. सो xi जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू n तक हो सकता है. सो xi कैन बी एनीथिंग. 0, 1, 2, so on and so forth up to n. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सही है. Now, with this assumption, now since the total number of balls in all the urns would be equal to n, क्योंकि हमने any balls हैं उनको distribute करना है, so that means summation of xi, where I ranges from 1 to r, I जो है वो 1 से लेके r तक range करेगा. So sum of xi would be equal to n. This makes sense. This is basically saying that the sum of all the balls in all the urns is equal to n, which is the actual problem कि हमने n balls को लेके r urns में distribute कर दिया था randomly. ठीक है. So now this is an equation. And this equation is basically x1 plus x2 plus dot x3 x4 up to xr, ये सब equal to n के हैं. Sum of this guy is equal to n. So this is an equation. We need the non-negative solutions to this equation. Why non-negative solution? Why? Because non-negative solutions, because you cannot have -1 ball in an urn. Okay. So हमें इसके जो है वो non-negative solutions चाहिए. Okay. So in order to find the non-negative solutions, when I say कि non-negative solution, this means कि 0 हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि किसी बॉक्स के अंदर कोई बॉल जाए ना. So उसकी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि let's say you have 3 balls which all look the same, and then you have 2 urns. ये 2 urns हैं. एक के अंदर x1 चली जाएंगी, एक के अंदर x2 चली जाएंगी. ठीक है. And we do know that x1 plus x2 is equal to 3. That makes sense?
x1 plus x2 is equal to 3. This is exactly a specific equation. इसकी एक एग्जांपल है x1 plus x2 plus x3 up to xr is equal to n. So उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है x1 plus x2 is equal to 3, क्योंकि हमने अब n को जो है वो 3 कर दिया है और r को 2 कर दिया है, ठीक है. So r is equal to 2 boxes and n is equal to 3 balls and 2 boxes. So basically x1 plus up to xr, which is x2, is equal to n. ये आ गया आपके पास. Now how many solutions of this is possible? ये जरा manually देख लेते हैं, ठीक है. Well, we can do this manually here, but obviously if there are 200 urns and 500 balls, I would not be able to do it. I dare not do it manually. So इस केस में manually कर सकते हैं. x1 plus x2 is equal to 3. तो हमें पता है कि कौन से इंटीजर्स को जमा करने से 3 आ जाएगा. 0 plus 3 is 3, 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 0 is 3. So ये आपकी जो बॉल्स हैं, ये वाली, ये बॉक्स फर्स्ट बॉक्स के अंदर आ रही हैं, फर्स्ट अर्न में आ रही हैं, and this number is in the second urn, and the sum of those in each case is equal to 3. Sum of those in each case is equal to 3. So there are 4 different possibilities here. So we have how many solutions? There are 4 non-negative solutions. Okay. Now at the same time, I also want to point out कि let's say कि हमें सिर्फ positive solutions चाहिए, ठीक है. What is the total number of positive solutions? The positive number of solutions is going to be 0 नहीं अब हो सकता, because 0 is not positive. 0 is non-negative, but it is not positive. So वो 0 0 कहीं पे अगर आ रहा हो उसको eliminate कर दें. So this would be 1 plus 2 and 2 plus 1. So there are two positive solutions for this expression. And when I say solutions, that really means कि x1 plus x1 और x2 जो हैं ये integer number होने चाहिए, वरना 1.2 और 1.8 वो भी हम जमा कर सकते हैं, but really I cannot have the balls have to be in discrete units. You cannot have 1.7 balls. So 2 positive solutions to this equation, and those 2 positive solutions are 1 plus 2 or 2 plus 1. And similarly, there are 4 non-negative solutions. 4 non-negative solutions. Okay. This is very easy to manually see in this case. इसको in general हमने कैसे करना है? In general, when you have n distinct balls and r distinct objects, so उसको हम कैसे find out करेंगे? So let's first try to find out the positive solutions. Although हमें non-negative में interest है, लेकिन हम पहले positive find out करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम non-negative में जाएंगे. So let's try to find out the positive solutions. यहाँ पे, so you have n distinct balls and r urns, r different urns or n distinct balls. So r urns and n balls. Okay. Xi is the number of balls in urn I, okay, such that x1 पहले में कितनी बॉल्स हैं, x2 दूसरे में, तीसरे में, so on, rth में कितनी बॉल्स हैं, उन सब को अगर ऐड कर लें, this should be equal to the total number of balls. Okay. Now, so I want to find out how many different non-negative solutions, how many different non-negative solutions for this equation. कितने non-negative solution है? And this number of non-negative solutions will be equal to the number of ways you can put these n distinct balls into r urns. ठीक है?
this would be equal to the number of ways you can put these balls into these urns. Okay. In order to find the non-negative solutions, it's tricky to find the non-negative solutions directly. So it's a lot easier to find the number of positive solutions. So I'm going to first focus on finding the positive solution, and then using that, we will find the non-negative solutions. First, we find the number of positive solutions. इसका मतलब है कि वो जीरो भी नहीं हो सकता. Positive solutions. How do we find that out? इसको ऐसे find out करते हैं कि ये आपके पास जो n balls हैं, पहली बॉल आ गई, दूसरी बॉल आ गई, तीसरी बॉल आ गई, फोर्थ बॉल एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास ये सारी n balls आ गई. n balls or objects. Non-distinct means alike. Non-distinct means alike. ठीक है. So I'm trying to find out. I'm going to find out कि ये मेरे पास ये एक स्पेस है इन दोनों बॉल्स के बीच में, ये दूसरी स्पेस है, ये तीसरी स्पेस है, ठीक है, ये आखिरी स्पेस है. How many spaces? How many spaces? Answer in the chat window. How many spaces? साइडों वालों को छोड़ दें, ये वाली को छोड़ दें, और उसकी रीजन आपको बताते हैं. How many spaces are there? How many spaces? So n-1 spaces. n-1 spaces. अभी आपको बताते हैं हमने वो साइड्स वाली क्यों छोड़ दी हैं. इनफैक्ट you would realize yourself कि हमने वो क्यों छोड़ दी. ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो n-1 स्पेसेस हैं, ये n-1 स्पेसेस जो हैं, इसमें मैं ऐसा करते हैं कि यहां पे मैं एक जगह पे इन n-1 स्पेसेस में से एक जगह पे मैं एक डिवाइडर डाल देता हूं. n-1 स्पेसेस में से एक जगह पे एक डिवाइडर डाल देता हूं. तो जहां पे डिवाइडर डाला तो कुछ बॉल्स एक तरफ चली गई, कुछ बॉल्स दूसरी तरफ चली गई. ओके, सो देन इफ यू पुट वन डिवाइडर यू विल गेट टू डिफरेंट सेट्स. एक डिवाइडर जो है वो दो सेट्स में डिवाइड कर देगा. अगर दो डिवाइडर होंगे तो कितने सेट्स में डिवाइड करेगा? आंसर इन द चैट विंडो. इफ आई पुट टू डिवाइडर्स देन इट विल डिवाइड इनटू 3 सेट्स. ठीक है, अगर दो डिवाइडर होंगे तो ये आपके पास टक 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 ये बॉल्स आ रही हैं. एक डिवाइडर इधर आ गया, एक डिवाइडर इधर आ गया, तो एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया. सो जितने डिवाइडर हैं उससे एक सेट ज्यादा आएगा. दो डिवाइडर हैं तो 3 सेट आएंगे. ठीक है, इफ आई हैव r-1 डिवाइडर्स, if I put r-1 dividers, कहां पे हमने डिवाइडर्स डालने? इन n-1 स्पेसेस के अंदर. तो ए में भी एक डिवाइडर यहां पे डाल दिया. इनफैक्ट इसको ऐसे करते हैं, इस दूसरे कलर से डालते हैं. एक डिवाइडर यहां पे डाल दिया, एक डिवाइडर यहां पे डाल दिया, और एक डिवाइडर यहां पे डाल दिया. ठीक है, ये मैंने 3 डिवाइडर हैं, तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स बन गए? ये एक यूनिट बना, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 डिफरेंट पोर्शंस बन गए हैं. इनको मैं 4 डिफरेंट अर्न्स में डाल सकता हूं. इफ आई पुट r-1 डिवाइडर्स, then I will get r portions that I can put into अर्न्स. उनको मैं अर्न्स में डाल सकता हूं. ठीक है, सो आर जो ये मेरे पास पोर्शंस बने, ये पहला पोर्शन बना है, ये दूसरा बना है, ये तीसरा बना है, ये चौथा बना है. 3 डिवाइडर डाले थे तो 4 पोर्शंस बन गए. r-1 डिवाइडर डालेंगे तो r पोर्शन बनेंगे, उनको हम r अर्न्स में डाल देंगे. ये एक हर पोर्शन को, पोर्शन मींस के नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसके अंदर, हर पोर्शन में कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं. सो दैट मींस कि ये जो मेरे पास n-1 स्पेसेस थी, इन n-1 स्पेसेस में से मुझे r-1 स्पेसेस चूज करनी है और वहां पे डिवाइडर्स डाल देने हैं, सो how many different ways of choosing r-1 dividers
and to be placed in n-1 spaces. So n-1 spaces में से आपने r-1 spaces पिक करनी है और वहां पे r-1 डिवाइडर्स डाल देने हैं. So pick r-1 spaces from n-1 available spaces, total spaces जो हमारे पास थी, and place those r-1 dividers there. उन जगहों पे डाल देती हैं to get r different कहने की जरूरत नहीं है, to get r divisions, और उनको मैं r divisions को मैं r different urns में डाल दूंगा. So how many ways of picking r-1 spaces from n-1? Everyone is saying that this should be n-1, choose r-1. So this is the total number of ways I can put these balls into these urns such that कोई अर्न जो है वो खाली नहीं जाएगा. इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड के ऊपर हमने इसलिए डिवाइडर नहीं रखे थे, डिवाइडर रखने की जगह नहीं डाली, बिकॉज कि अगर वहां पे भी मैं रख दूंगा तो इसका मतलब है कि उस स्पेस के ऊपर भी कोई डिवाइडर आ सकता है. वहां पे डिवाइडर रख दूंगा तो वो एक बॉक्स खाली चला जाएगा. सो व्हाट दिस इज डूइंग इज it's giving me the distinct positive integer valued solutions. ठीक है, ये मुझे क्या कर रहा है कि n-1 choose r-1 is the number of distinct positive integer valued solutions to the equation x1 plus x2 plus dot 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 plus xr is equal to n. इसके इतने solutions हैं आपके पास. ठीक है, और xi जो है वो 1 से लेके वैल्यू ऑफ xi कैन बी 1 से 0 नहीं हो सकती, 1 से लेके आपकी n तक हो सकती है. So now we are content with कि there are n-1 r-1 positive integer valued solutions to this equation. Now I am going to state a proposition क्या कहती है कि proposition ये बताती है कि for x1 plus x2 plus so on plus xr is equal to n, if you get the same equation, ये वही equation है. ठीक है, this equation has how many non-negative, some number of non-negative, अभी बताया नहीं है वो नंबर, non-negative integer valued solutions. और वो नंबर क्या है? वो नंबर है n plus r-1 choose n. ठीक है, n plus r-1 choose n. ठीक है, and this number by the way is different from n-1 choose r-1. ये वाला जो है ये positive integer valued solutions थे, this is non-negative integer valued solutions है. इसको प्रूव कर देते हैं. very simple proof, very simple proof. Okay. So let's say that yi is equal to xi plus 1. assume करते हैं yi is xi plus 1. तो अगर xi मेरा नॉन नेगेटिव है तो दैट मींस कि yi मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने 1 ऐड कर दिया. xi जब भी 0 होगा yi will always be 1. ठीक है, so yi is 1 greater than xi, which means if xi is non-negative, then yi will always be positive. You can guarantee that yi will be positive. Okay, so yi की जगह पे मैंने xi plus 1 डाल दिया. So what that means is y1
plus y2 plus so on plus yr. अब हर एक में मैंने x6 में एक एक ऐड कर दिया है. दिस शुड बी इक्वल टू n प्लस आर, शुड बी इक्वल टू n प्लस आर. ठीक है, क्यों? ये y1 जो है ये भी xi प्लस 1 है, ये भी xi प्लस 1 है, ये भी x2 प्लस 1 है, ये xr प्लस 1 है. तो 1 1 1 1 ऐड कर दिया. तो कितनी दफा ऐड किया? r बार ऐड किया था. तो वो r मैंने जाके यहाँ पे एडिशनल यहाँ पर लिख दिया, n प्लस r. सो नाउ दिस गाय हियर, दिस इज अनदर इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इक्वेशन इस इक्वेशन के how many positive integer valued solutions, इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन है? दैट वुड बी द सेम एज द non-negative integer valued solution of this equation, because these two are the same equations, so इस इक्वेशन के जितने yi की टर्म्स में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस होंगे, और हमें पता है कि इस तरह की इक्वेशन अगर हो आपके पास लिखी हुई, तो इसके पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं कि इफ यू हैव दिस इक्वेशन x1 plus x2 up to xr is equal to n, इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होते हैं? वो होते हैं n-1 चूज r-1. यानी जो राइट साइड पे चीज लिखी हुई है उसमें से एक माइनस करते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे आपके पास जितनी क्वांटिटीज हैं उसमें से एक माइनस करते हैं, उसका चूज ले लेते हैं. सो सिमिलरली y1 plus y2 plus so on up to yr is equal to n plus r, इसके कितने इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस होंगे? वो होंगे n plus r, जो ये चीज राइट साइड पे लिखी है, -1 चूज r-1. ठीक है, एंड दिस गाय इज इक्वल टू n plus r-1 चूज n एज वेल. सेम चीज है ये हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके इधर लिखते हैं, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट. Okay, it's exactly the same thing as saying 7 choose 2 is equal to 7 choose 5. 7 में से 2 चूज कर लें या 5 छोड़ दें, या 5 चूज कर लें 2 छोड़ दें, एक ही बात होती है. तो ये मैंने ऊपर जो है ना ये वही चीज लिखी है. ठीक है, सो नाउ दिस वाज आवर प्रोपोजिशन. ये तो हमने प्रूफ करना था कि n plus r-1 चूज n, इतने आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन है. ठीक है, we go back to the same example जो हमने कंसीडर की थी, x1 plus x2 is equal to 3. ठीक है, so I am going to repeat that example here. ये x1 plus x2 is equal to 3, ये आपके पास 4 सॉल्यूशंस इसके थे. कौन से थे? 0 plus 3, 1 plus 2, 2 plus 1 और 3 plus 0. ठीक है, how many integer valued non-negative solutions? 4. ठीक है, how many positive solutions? 2 positive solutions. So positive integer valued solutions आपके पास 2 हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस आपके पास 4 हैं. ये ऊपर हमने एग्जांपल के अंदर देखा था. सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integer valued solutions, this should be equal to n plus r-1 choose n. And what is n here? n क्या है यहाँ पे? n is 3 and r is 2. n is 3, r is 2. n is 3, r is 2. So this would be 4 choose 3. ये जो आपके पास बनता है, this is equal to 4 choose 3, which is 4. This is 4. So this is great. ये आपके पास एक और टेक्निक आ गई. आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये यूज कैसे होती है. सो कपल ऑफ एग्जांपल्स, वेरी क्विक एग्जांपल्स, एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर 2. सो लेट्स से यू हैव 20,000, K means thousand, $20,000, $20,000 okay, and you want to invest these $20,000
in units of $1,000, in units of $1,000. So need to invest, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके स्टॉक खरीदते हैं तो आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं. नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ 1,000 USD. यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि कहीं पे 3K डाल दिए, कहीं पे 2K डाल दिए, कहीं पे 5K डाल दिए, कहीं पे 4K डाल दिए, such that the sum is equal to 20. ठीक है. So need to invest in units of $1,000 in four different stocks. स्टॉक मार्केट में आपने जाके 4 डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर करने हैं इन्वेस्ट. सो लेट्स से अब आपसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू इन्वेस्ट. तो ये कर सकते हैं 5,000 5,000 5,000 5,000. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. या आप ये कर सकते हैं 8,000 8,000 2,000 2,000. दैट्स आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी. हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर. कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. सो लेट्स से कि स्टॉक नंबर 1 में जो इन्वेस्ट करते हैं वो X1 है, स्टॉक नंबर 2 में जो इन्वेस्ट करते हैं वो X2 है, फिर X3 है, फिर X4 है. ठीक है. यू सी कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे मैप किया है वो बॉल्स इन अर्न्स वाले प्रॉब्लम के ऊपर. सो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, इज द अमाउंट इन $1,000 invested in first stock. In units of 1K USD. ठीक है. सो हो सकता है 3 हो, X1 जो है वो 3 हो, विच मीन्स के $3,000 आपने पहले स्टॉक में डाल दिए. इसी तरह X2 दूसरे में, X3 तीसरे में, X4 चौथे में. इन चारों का सम जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए. ठीक है. 20 होना चाहिए. ठीक है. Now the constraint is that you must invest at least some money in each of the 4 stocks. यानी X1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, या X2 0 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए. So I am interested in finding the number of positive integer valued solutions. Number of positive integer valued solutions. And what is that? The number of positive integer valued solution, वो क्या होंगे आपके पास? Number of positive integer valued solutions वो होंगे 20 minus 1 and 4 minus 1. So this is your answer. ठीक है. If it is okay to invest zero in any stock, यानी अब आपके पास X1 plus X2 plus X3 plus X4, ये फिर भी आपके पास 20 होगा, लेकिन X1 now can be 0. X1 can be 0. यानी ऐसा हो सकता है कि आप सारे के सारे पैसे जो हैं वो 3 स्टॉक्स में डाल दें. X2 भी 0 हो सकता है, फिर सारे के सारे पैसे 2 स्टॉक्स में डाल दें, ये भी हो सकता है. ये सारे के सारे उठा के एक ही स्टॉक में डाल दें, बाकी तीनों स्टॉक्स को खाली छोड़ दें. सो X1 can be 0 and so can X2, X3, X4, कोई भी 0 हो सकता है इसमें से, लेकिन सम जो है उनका 20 होना चाहिए. सम 20 होना चाहिए. सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ non-negative integer valued solutions, which is equal to n plus r minus 1, choose n. And this will turn out to be 1771. ये भी इसका भी कोई आंसर निकलता है. This would be 19, choose 3, and you can solve this. Now I want to ask this question. The question is, so ये नंबर जो भी आपके पास आता है, मुझे पता नहीं क्या नंबर है, इस नंबर को कहते हैं A,
इस नंबर को कहते हैं b. Is a greater than b or less than b? Greater than or less than b? A is greater than b or less than b? See, a is the positive integer valued solutions and b is the non-negative integer valued solutions. So somebody said greater. No, most people are saying less than b. So agar majority voting pe chale, so this would be less than b, and in fact it would be less than b. Why it would be less than b? Because non-negative उसका एक स्पेशल केस है पॉजिटिव, उसका एक स्पेशल केस है पॉजिटिव, ठीक है. सो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो ए है वो ए जो है वो बी से छोटा होगा, बी से वो छोटा होगा. नाउ आई वांट टू मॉडिफाई दिस क्वेश्चन, ठीक है. मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? वो है व्हाट इफ नॉट ऑल द मनी. अभी तक तो हमने कहा था ना कि ये भी इज इक्वल टू 20 है, x1 x2 x3 x4 इनका सम जो है 20 होना चाहिए, चाहे x1 x2 0 हो या ना हो, पॉजिटिव सॉल्यूशंस हो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हो. व्हाट इफ नॉट ऑल द मनी नीड बी इन्वेस्टेड, यानी अब जो है वो 20 भी हो सकते हैं, हो सकता है आप $19,000 इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है $15,000 इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है $10,000 चार स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें. तो फिर क्या करेंगे? सो हाउ डू आई सॉल्व दिस? इसके लिए भी एक ट्रिक है. सो द ट्रिक इज कि लेट x5 एज ए डमी स्टॉक, उसको डमी स्टॉक करते हैं, और मैं कहता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये जो हमारे चार स्टॉक्स हैं, और उसमें मैं ये डमी स्टॉक ऐड करता हूं, और मैं कहता हूं ये सब जो है ये 20 के बराबर होना चाहिए. इसका मतलब है अब 20 में से हो सकता है कुछ पोर्शन x5 में चला जाए, कितना जाएगा हमें पता नहीं है. यू नो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं. हो सकता है x5 में 2 जाए, हो सकता है 7 जाए, हो सकता है 3 जाए, हो सकता है 12 चला जाए, ठीक है. सो कुछ भी पोर्शन जो है वो 20 का वो x5 में जा सकता है. दैट अमाउंट ऑफ मनी would be not invested. So इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर if I find the non-negative solutions to this expression, number of non-negative solutions to this expression will include cases when x5 will have some value 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है वैल्यू up to 20. So it will include cases when x5 is greater than 0, that is some money will be left out. वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस दैट वुड बी होगा फिर अगेन n which is 20. Now r is 5, not 4. R is 5, okay? Minus 1, choose 20. So this will turn out to be 24, choose 20. And this will also be some number. ठीक है, let's say this number is c. ठीक है, यहाँ पे भी हमने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं, और ये b में भी हमने ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकाले थे. a तो हमें पता है कि b से भी छोटा था. So b is 1771. Now if I want कि मुझे वो $20,000 इन चार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, b मुझे कहता है कि there are 1771 ways. C मुझे कहता है कि it is not required that you invest all of those $20,000. It is okay if you invest all of those $20,000, but what if you want to invest 17 out of those 20, or 14 out of those 20, or 10 out of those 20? Okay, so now what would be the relationship between C and B? So is C greater than B or smaller than B?
So somebody is asking, shouldn't it be that x5 is greater than or equal to 0? Yes, the solutions will say कि it will, solutions के अंदर यही आएगा कि x5 greater than or equal to 0 होगा. मैंने ये इसलिए लिखा है कि when x5 is greater than 0, जब वो equal to 0 है, इसका मतलब है कि आपने सारे के सारे 20,000 इन्वेस्ट कर दिए. ठीक है. अगर x5 ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि x5 वो जो डमी स्टॉक के अंदर कुछ पैसे जा रहे हैं जो हमने नहीं इन्वेस्ट करने, वो आपके पास कुछ बच जाएंगे. जब x5 0 होगा वो तो फिर इसका मतलब है आपने कुछ बचाया नहीं, आपने तो सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया. ओके. सो काब बिन अवैध, you had this question. I hope that answers this question. So in this case, C is going to be greater than B. C is going to be greater than, क्योंकि it includes all of those cases. It includes all of those cases जो B वाले केस में. Okay. So Maz is asking, shouldn't we apply positive solution formula? No. Why should we apply positive solution formula? We are not restricting कि हर स्टॉक में कुछ ना कुछ डालना है आपने. हम कह रहे हैं कि ठीक है, किसी स्टॉक में 0 भी हो सकता है, x1 0 हो, x2 भी 0 हो, x5 भी 0 और x3 भी 0 हो जाए, सब का सब x4 में डाल दिया, x4 20 हो गया. दिस इज सर्टेनली पॉसिबल और वो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. So this example, with this example I will close chapter 1, but before we part ways with chapter 1, I would like to mention two things. One is that you see example, I think this is 6D example. This is an alternate way to solve the broken antenna प्रॉब्लम. वही जो थे ना हमारे पास एंटेनास के 10 एंटेनास हैं, उनमें से 3 ब्रोकन हैं, ब्रोकन एंटेना प्रॉब्लम. ठीक है. वो हमने सॉल्व भी किया था जेनेरिक केस में, अल्टरनेट वे टू सॉल्व द ब्रोकन एंटेना प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस इंटीजर सॉल्यूशंस, non-negative or positive integer valued solutions. So make sure that you look at that example, an alternate way of solving that. Why is C greater than B, शायान? So अहमद ने आंसर किया आपको और वो सही आंसर है कि जब आपके पास 4 ही स्टॉक से x1, x2, x3, x4, उसमें आपने 20,000 को फिट करना था. ठीक है. अब आपने x5 डमी एक स्टॉक ले आया है, तो इसका मतलब है कि x5 में या 0 होगा या कुछ और चीज होगी. जब x5 0 होगा तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आप पहले ही जो है वो केस बी में कवर कर चुके हैं. ओके. केस बी में कवर कर चुके हैं. और जब x5 नॉन जीरो होगा, these are additional possibilities कि जहां पे आप 20 से कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 इज इक्वल टू 20, इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालें जो आपको बताएगा कि इन 4 स्टॉक्स में आपने 20,000 के 20,000 डालने हैं, कुछ बचा नहीं सकते. ठीक है. फिर उसमें ऐड करें कि 19,000 डालने हैं, फिर उसमें ऐड करें कि 18,000 डालने हैं, फिर उसमें ऐड करेंगे 17,000 डालने हैं. तो इन सबको ऐड करेंगे, वो आपके पास आंसर यही आएगा कि ये जो मुझे x5 डमी डाल के आ गया. लेकिन 20 उन टर्मों को ऐड करना जो है वो नाइटमेयर होगा. ये बड़ा आसानी से जो है आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा. ओके. अमर जमील, आपका कोई सवाल है? प्लीज गो अहेड एंड आस्क. यस सर. तो मेरा सवाल ये था, जो हमने तरीका किया है x5 डमी रख के, तो इसमें तो दैट केस इज आल्सो इन्वॉल्व जहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग नथिंग. x5 आपका अगर 20 हो जाता है तो दैट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, राइट? एब्सोल्युटली. So if they say you have to invest something at least, so all we do is a -1 from our answer. जी, तो आपको वो करना पड़ेगा, एक -1 करना पड़ेगा अपने आंसर में से. बिल्कुल सही. Right, सही है. Okay. Yeah. Now I'm going to move to chapter 2 now. Chapter 2, and you will see that there is a very close relationship with chapter 1 with chapter 2, and that relationship is that in order to calculate the probabilities, so chapter 2 is about the axioms of probability. So बहुत सारी हम probability के calculations करेंगे, और ये सारी probability की calculations करने के लिए हमें counting करनी पड़ेगी.
और काउंटिंग के लिए we will not forget what we learned in chapter 1. चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ तरीके सीखे हैं, बड़े सिंपल तरीके, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस, मल्टीनोमियल लॉ and distribution of balls and urns, basic counting principle. These are all very simple sort of ways of counting. So we will learn that by knowing those counting method, it would be very easy to compute the probabilities. बिल्कुल उसी तरह जैसे 4 में से जो 2 एंटेनास थे वो खराब थे, वो हमने मैनुअली उसको सॉल्व किया था, लेकिन हम उसको काउंटिंग के प्रिंसिपल्स पे भी हम सॉल्व कर सकते थे उसको यूज करके. एंड फॉर दैट आई हैव रेफर्ड यू टू दिस एग्जांपल 6D इन द बुक. इसको काइंडली आप जरूर देखें. ठीक है. सो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. हमने पहले एक चीज ये डिसाइड की थी कि यार कि 4 एंटेनास हैं, 2 सही हैं, 2 खराब हैं, उनको आपने रैंडमली प्लेस करना है. 3 कॉम्बिनेशंस ऐसी आ जाती थी, 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी आ जाती थी जिसमें सिस्टम काम करता था, 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी थी जिसमें नहीं काम करता था. तो टोटल 3 आउट ऑफ 6 में वो काम करता था. तो हमने चुप करके कह दिया कि जी ये 3 आउट ऑफ 6 is the likelihood or the possibility or the probability that the system will work if you randomly place antennas onto the device. ठीक है. एक और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि when you roll a dice, एक डाइस को अगर रोल करते हैं तो what is the probability of 2 showing up, कि फेस पे 2 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर इन द चैट विंडो प्लीज. सो सब यही कह रहे हैं कि 1/6 है, सब यही कह रहे हैं 1/6 है. बट वाई क्यों? इफ डाइस इज फेयर, ऑफ कोर्स यस डाइस इज फेयर, तो ये 1/6 है. क्यों 1/6 है? क्योंकि 6 फेसेस हैं, इक्वल पॉसिबिलिटी है, इफ इट्स अ फेयर डाइस, इक्वल पॉसिबिलिटी है कि 6 में से कोई भी आ जाए. हाउ डू आई शो दिस? बाय परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट. मैं अगर आपसे कहूं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है और मुझे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके मुझे प्रूफ करके दें उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि 2 के आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 1/6 है, वो एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करेंगे? एनीवन हैज एनी थॉट्स ऑन दैट? शाह फराज ने कहा है कि 1000 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे और टेक एवरेज. जोहा ने कहा है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेंगे और टेक द प्रोपोर्शन, कितनी दफा आपका 2 आया है. रैंडमली रिपीट एक्सपेरिमेंट. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा आपके लिए ना. सो अगर आप 1000 दफा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द टाइम, 1/6 ऑफ 1000, इतनी दफा जो है ना आपको फेस नंबर 2 नजर आएगा, और इतनी दफा फेस नंबर 6 नजर आएगा, इतनी दफा फेस नंबर 3 नजर आएगा. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी की जो वो डेफिनेशन है, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, कि आपने एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना है, एंड यू कैन ओनली डू दैट थ्योरेटिकली. प्रैक्टिकली डोंट ट्राई डूइंग दैट, वरना तो सारी उम्र डाइस ही रोल करते जाएंगे. ठीक है. सो theoretically you can do that. If you perform the experiment an infinite number of times, the proportion of times you see something happening, that's the probability of that thing happening. Okay? The proportion of time you see 2 appearing, that's the probability of 2 appearing. जितनी दफा 2 appear करेगा वो उसका proportion है कि आपने experiments जितनी बार किया था, एक infinite times किया था, उसमें से प्रोपोर्शनली जितनी दफा आपको 2 नजर आया वो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ठीक है. नाउ प्रूविंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, कि नहीं ये ऐसे ही होता है. हमें क्या पता, हमने 6 बार एक्सपेरिमेंट किया और एक बार भी 2 नहीं आया, 200 बार एक्सपेरिमेंट किया और एक बार भी 2 नहीं आया. ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो this is a very troublesome problem, कि ये इसको हम शो कैसे करें विदाउट परफॉर्मिंग दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो प्रैक्टिकली हम कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है. इसको काउंटर करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक्सियम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के. सो एक्सियम्स क्या कहें, वो इस तरह की assumptions हैं कि जिसके ऊपर हम एग्री कर लेते हैं, एंड देन वी डिराइव द whatever kind of definition we do by using those axioms. Izaz, you have a question?
यस सर। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल है तो वो तो हमारे प्रोसेस को कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, लेकिन जी प्रोबेबिलिटी फिर हम पढ़ते क्यों है जब हम एक एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो नहीं जो कर सकते। रिजल्ट आएगा वो तो इनएक्यूरेट आएगा ना, तो उसको जी हम बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल क्यों पढ़ते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वी आल्सो नो कि ये जो 1/6 आंसर लोगों ने दिया है कि प्रोबेबिलिटी के ये द पॉसिबिलिटी द लाइक्लीहुड कि 2 विल शो अप व्हेन यू रोल अ डाइस, कि आपको 2 नजर आ जाएगा। सबने आंसर दिया कि 1/6 है, हमें ये भी पता है कि ये आंसर भी सही है और ये एक्यूरेट आंसर है। इफ द डाइस इज फेयर, दिस आंसर इज प्रिसाइज, इसके अंदर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दिस इज द प्रिसाइज आंसर। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करके इस आंसर तक नहीं पहुंच सकूंगा। एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे तो इनफाइनाइट ट्रायल्स करने पड़ेंगे, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, सो इसलिए हम एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करेंगे। सो बिफोर वी गो टू द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई एम गोइंग टू गो ओवर सम वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशंस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस है, वो हम जरा आपको बताते हैं। सो सबसे पहली एक डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सो व्हाट इज ए सैंपल स्पेस? सो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करें जिसकी आउटकम्स आपके कंट्रोल में ना हो। मिसाल के तौर पे एक डाइस को रोल कर दिया, एक डाइस को रोल कर दिया, और क्या चीज शो करेगी इसकी आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। सो परफॉर्म ए रैंडम एक्सपेरिमेंट with many possible outcomes, with many possible outcomes। या आउटकम क्या चीज है? जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें नजर आया। आपने डाइस रोल की तो आपको 3 नजर आया या 4 नजर आया, 5 नजर आया। दीज आर ऑल ऑफ दीज आर आउटकम्स। सो व्हाट इज दिस? सैंपल स्पेस is the set of all possible outcomes, is called sample space। सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस कह देते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे अगर हम टॉस अ डाई, तो सैंपल स्पेस हमारी क्या होगी? सैंपल स्पेस वुड बी इक्वल टू, ये एक सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या है पॉसिबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कोने पे नहीं खड़ा होगा वो। ठीक है, similarly, if you flip a coin, flip a coin, what is your sample space? Sample space could be tail or head, tail or head, tail or head। नाउ एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं जिसमें मैं 2 कॉइन्स को फ्लिप कर देता हूं। तो आप उनको कह सकते हैं कि ये 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं, बट मैं दोनों को इकट्ठा ही उछाल देता हूं, तो एक ही एक्सपेरिमेंट बना देते हैं। या एक कॉम्पोजिट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, पहले एक कॉइन उछाला फिर दूसरा कॉइन उछाल दिया। सो दिस इज ए वन कॉम्पोजिट एक्सपेरिमेंट। कॉम्पोजिट एक्सपेरिमेंट मीन्स कि उसके अंदर 2 छोटे छोटे हमने एक्सपेरिमेंट डाल दिए या दोनों को इकट्ठा उछाल दिया। सो फ्लिप 2 कॉइन्स, flip 2 coins, what is the sample space? So somebody needs to write the sample space in the chat window. Somebody needs to write the sample space in the chat window. Zain, Zoha, Mustafa and others, thank you very much। सब लोग बिल्कुल सही है कि आपने 2 कॉइन्स को फ्लिप किया है, तो या तो आपके पास टेल आ जाएगी, या टेल पहली पे टेल दूसरे पे हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगी, या हेड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन 4 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाउ डू वी नो कि देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज? ये हमें एक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल भी बता देता है। सी, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक कॉइन को आपने अगर फ्लिप किया और दूसरा कॉइन फ्लिप किया, दूसरा छोटा एक्सपेरिमेंट किया,
तो उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सो टोटल 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी. नाउ इफ यू फ्लिप अ कॉइन एंड टॉस अ डाई, flip a coin and toss a die, how many points in sample space? Flip a coin and toss a dice. डाइस का जो सिंगुलर है वो डाई होता है, लेकिन वो यूज डाइस ये भी यूज कर लेते हैं. फ्लिप अ कॉइन एंड टॉस अ डाइस. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? एवरीवन इज सेइंग 12. सो कॉइन के लिए आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और डाइस के लिए आपकी 6 पॉसिबिलिटीज हैं. सो 12 डिफरेंट पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स और आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस के अंदर आपके 12 पॉइंट्स और आउटकम्स हैं. सो यू सी काउंटिंग आपको ये बता रही है कि आपका सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं. नाउ इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको एक 6 नजर आए और 7 टेल नजर आए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ 6 एंड अ टेल इफ यू परफॉर्म दिस फ्लिप अ कॉइन एंड टॉस अ डाई टुगेदर. ये बड़ा एक्सपेरिमेंट आपने एक किया है. उस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ having a 6 and a tail simultaneously which would be ये 12 पॉइंट्स हैं आपके और सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं. it would be 1 out of 12. ठीक है. कुछ केसेस कभी ऐसे आएंगे कि ये सारे पॉइंट्स इक्वली लाइकली ना हो, तो फिर हमें उस केस के अंदर कैलकुलेशंस कुछ और करनी पड़ेंगी. बट फॉर दिस केस probability of seeing a 6 and a tail is 1 over 12. Probability of seeing a 3 and a head is also 1 over 12. 3 and a head is also 1 over 12. Okay. Now हमें सैंपल स्पेस का पता चल गया और सैंपल स्पेस के अंदर हमें ये पता चल गया कि ये सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स होता है. सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. सो व्हेनेवर यू परफॉर्म अ रैंडम एक्सपेरिमेंट यू विल गेट वन ऑफ द मैनी पॉसिबल आउटकम्स. ऐसा नहीं होगा कि जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे आपको ये नहीं होगा कि 2 और 3 दोनों मिल जाए. नहीं, या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा. सो if you have a sample space with some outcomes, ठीक है, only one outcome will occur from the sample space when you perform the experiment. जब एक दफा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपको कोई एक आउटकम मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी. ठीक है. दोबारा परफॉर्म करेंगे तो फिर भी एक ही आउटकम मिलेगी. हो सकता है वही वाली हो सकता है डिफरेंट हो, वी डोंट नो. ठीक है. सो आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको एग्जैक्टली वन आउटकम मिलेगी. ओनली वन आउटकम विल अकर. ठीक है. नाउ ये तो हमारी जो है ना ये आउटकम्स हो गए. नाउ what we also define in addition to this is called an event. What is an event? Event is a subset of the sample space. So sample space क्या थी? Sample space आपकी थी ये सारे points का, इन सारे points का union, because sample space is the set of all possible outcomes. अगर हम उसका एक सबसेट ले लें उस सैंपल स्पेस का, लेट्स से मैं ये वाला सबसेट ले लेता हूं, दिस सबसेट. सो दिस सबसेट is one event. This subset is one event. This subset is another event. एक और आपको दिखाते हैं. This subset is yet another event. ये जो ग्रीन के अंदर है. अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाला और येलो वाला या ब्राउन वाला, whatever color is that, I think it's brownish yellow. So इनके अंदर overlapping भी है. ठीक है. So a subset of the sample space is called an event. ठीक है. A subset of a sample space
is called an event. Okay. In other words, an event can have one or more, इनफैक्ट वन भी नहीं, जीरो भी हो सकती है उसके अंदर. एक ऐसा इवेंट भी हो सकता है जिसके अंदर कोई आउटकम भी ना आए. एक सबसेट में ऐसा भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ. सो यू कैन हैव अ सबसेट, ये ग्रीन वाला सबसेट, ये दिस इज आल्सो अ सबसेट, बट दिस इज एक एम्प्टी सेट जो है वो भी एक सबसेट होता है. ठीक है, एम्प्टी सेट इज आल्सो अ सबसेट. इन अदर वर्ड्स, एन इवेंट हैव कैन जीरो और मोर आउटकम्स included. ठीक है, so event itself is a set जिसके अंदर जीरो या मोर आउटकम्स होंगी, ठीक है. so Jazeb is saying, but for a fair dice you will get one outcome. Okay, that is true, but आउटकम आपके पास एक आएगी. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इवेंट एक आ रहा है. सो एक इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट की एग्जांपल देते हैं. रोल अ डाइस इवेंट की एग्जांपल देते हैं. फेज 3 शोज अप. सो इस इवेंट के अंदर हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? बस एक ही आउटकम है जो 3 वाली है. एक और इवेंट डिफाइन करते हैं. इवेंट ये वाला ई था, और एक मैं एफ इवेंट को एन ऑड फेज शोज अप. सो एफ इज अ सेट ऑफ 1, 3 and 5. सो 3 आउटकम्स जो है वो एफ के अंदर आ गई हैं. ठीक है, 3 आउटकम्स इसके अंदर आ गई हैं. सो आई डोंट नो, somebody had asked this question चैट के अंदर, वो थोड़ा ऊपर चला गया. सो अगर इसको पिक्टोरियली दिखाएं, सो यू हैव दिस सैंपल स्पेस which has lots and lots of outcomes, and then within these outcomes जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इनमें से एग्जैक्टली एक आउटकम अकर करेगी. एग्जैक्टली वन आउटकम विल अकर. ठीक है, एंड लेट्स से यू हैव दिस इवेंट. ये कलर इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा. लेट्स से यू हैव दिस इवेंट. ठीक है, this event E will, we say that E will occur when the experiment results in any of the outcomes that are included in E. So यानी आप देखें कि E के अंदर ये 3 आउटकम्स हैं आपके पास. E के अंदर ये 3 आउटकम्स हैं आपके पास. दिस 1, ये 2, ये 3. इन 3 में से अगर कोई सी भी आउटकम आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि इवेंट E अकर किया है. Okay, so very important to realize the difference between an outcome and an event. Outcome जो है वो सिर्फ एक ही है. एक इवेंट जो है, it's a composite. An event is a composition of multiple outcomes. एक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं. ये 3 की एग्जांपल हमने आपको दी है. So let's say कि if I perform the experiment और आपकी जो है आउटकम ये वाली आ जाती है, दिस मीन्स के E has not occurred. ठीक है, अगर ये वाली नहीं आती, इसको इरेज कर देते हैं. अगर ये वाली आउटकम आ जाती है, ये वाली, ठीक है, तो हम कहेंगे कि E has occurred. I perform the experiment और ये वाली आउटकम आ गई, तो we will say
E has occurred. ठीक है, एग्जाम्पल अगेन, डाइस को रोल करते हैं, डाइस को रोल करते हैं, और अगर आपके पास 4 आ गया तो हम कहेंगे कि F has not occurred. 4 आया तो F has not occurred. okay? अगर आपके पास 6 आ गया तो F has not occurred. अगर 3 आ गया तो F has occurred. 5 आ गया तो F has occurred. Does this make sense to everyone? कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में अभी पूछ लें. Very important to understand that. So, is event a composition of outcome 1 and outcome 2, or outcome 1 or outcome 2? See, realize that event is not a and or, it's a set of outcomes. और हमें यह पता है कि एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक ही आउटकम हो सकती है, एक से ज्यादा आउटकम नहीं हो सकती. ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द और एंड काइंड ऑफ एन आंसर, सो दिस वुड बी और. ठीक है, so if any one of these 3 points, occur, इनमें से कोई सा भी हो जाए तो हम कहेंगे कि E has occurred. इसमें से कोई भी हो जाए, the E has occurred. Will a dice landing on edge will be an event with no outcome? Hassan, we have answered this before. पिछले 2-3 लेक्चर्स में किसी ने पूछा था कि अगर कॉइन जो है वो साइड पे एज पे खड़ा हो जाए तो क्या होगा. दिस वुड बी a zero probability event. इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. ठीक है, how many total events would there be? Wow, Taimur, that's a great question. How many total events would there be? कितने होंगे टोटल इवेंट्स, कोई बता सकते हैं? if you roll a dice, कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? ग्रेट, सारा अहमद जुबैर, सोलिया फरीद, हसन अहमद, वेरी गुड. सो ये हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आपके पास एक सेट हो, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल सबसेट्स यू कैन गेट 2 power n, where n is the number of elements in the set. So अगर आपने एक डाइस को रोल किया है, so 6 possible outcomes हैं. How many different possible subsets you can get? 2 to the power 6 different possible subsets you can get. So that's the number of events that you can have. Okay, so that's great. We move forward. So I'm going to talk about event भी हो गया हमारे पास. I'm going to give you an example of an event which has infinite sample points. ठीक है, so experiment है आपके पास. experiment is turn on a light bulb and measure its lifetime. वो जब तक चलता जाएगा लाइफ टाइम उसका. जब वो बल्ब जाके फ्यूज हो जाएगा, then we will say that the life is over, the bulb has fused. The total amount of time, the total length of time that the bulb was on, that's the lifetime of the bulb. Okay? And that lifetime of the bulb can be anything between 0 and infinity. Okay? I can define an event E to be equal to X such that X is between 0 and 5. ठीक है, so इसका मतलब है कि अगर 0 से 5 यूनिट्स टाइम के बीच में अगर वो बल्ब फ्यूज हो गया तो इवेंट हैज अकर्ड. अगर वो 5 यूनिट्स से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर गया, बल्ब की लाइफ टाइम उससे ज्यादा हो गई, 5 मिनट तक वो नहीं फ्यूज हुआ, तो दैट मीन्स कि इवेंट E हैज नॉट अकर्ड. ओके, दैट मेक्स सेंस? So now I'm going to talk about, since an event is a set, please appreciate that
that the sample space is a set. Event is also a set. Event is also a set. Okay. So when we talk about set, तो आपने class 4, class 5, class 6 में या maybe class 8 में sets के ऊपर operations पढ़े होंगे. You can take the union of sets, you can take the intersection of sets, and certainly you can do that with events as well, because events themselves are the sets. Events जो हैं वो खुद से भी sets हैं. ठीक है. So union, okay, we define two events E and F. Oops, E and F. Okay. Then, by definition, E is a subset of sample space. F is also a subset of sample space. Okay. E is a subset of sample space, and F is also a subset of sample space. Then E union F is also a subset of sample space. Why is that true? Set theory हमें बताती है कि if you have a sample space, कि मैंने sample space बनाई है, इसके अंदर एक event है E, एक event है F. मैंने intentionally show किया है कि E और F थोड़े overlapping हैं. ये disjoint भी हो सकती हैं और fully overlapping भी हो सकती हैं. ठीक है. F जो है वो E का subset भी हो सकता है. But really, without going into that difficulty, हम ये कहते हैं कि E union F, it doesn't matter whether E or F are overlapping or not. E union F is a subset of S. Now, we said that E occurs if any of the outcomes in E occur. हमें ये पता है कि एक वक्त में एक ही आउटकम होगी, एक से ज्यादा आउटकम नहीं हो सकती. ठीक है. And similarly, F occurs if any of the outcomes in F occur. Okay, we said that. Now we say that E union F occurs when either E occurs or F occurs. Okay? और both occur. अगर दोनों अगर कर जाते हैं तब भी ठीक है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल हियर. एग्जांपल ये है कि ये आपके पास मैं कुछ सैंपल पॉइंट्स डाल देता हूँ. दिस इज सैंपल पॉइंट 1, दिस इज सैंपल पॉइंट 2, सैंपल पॉइंट 3, दिस इज सैंपल पॉइंट 4, सैंपल पॉइंट 5, सैंपल पॉइंट 6, सैंपल पॉइंट 7. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन. If sample point 2 occurs, Sarah, thank you for reminding. We still have few minutes left. 2-3 मिनट अभी हमारे रहते हैं. So and everyone is welcome to leave any time or not attend the class at, ना भी attend करें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को. You can always watch the videos on YouTube. So if outcome 2 occurs, if number 2 occurs, has E occurred or not? E occurred or not? Yes. F occurred or not? No. E union F occurred or not? E union F. Yes. E union F has occurred. Okay. E occurred, F not occurred, E union F has occurred. Okay. If number 3 outcome occurs, if outcome number 3 occurs, E occurs, F occurs, E union F also occurs. E has occurred, F has occurred, E union F has also occurred. Okay. Yeah. So why E union F occurred? Because E union F occurs when either E or F or both occur. ठीक है. दोनों में से कुछ भी हो जाए तो
E union F is the set of all the 7 outcomes. E union F is the set of all 7 outcomes. उन 7 में से कोई एक भी हो जाए तो वो सब हो जाएंगी, तो E union F अकर कर जाएगा. Similarly, E intersection F is the set of outcome number 3 and outcome number 4. Okay? अगर 3 अकर करती है तो E intersection F अकर करेगा, अगर 4 अकर करती है तो E intersection F अकर करेगा, अगर 1 अकर करती है तो E intersection F नहीं अकर करेगा, 6 अकर करती है तो E intersection F does not occur. Okay? So somebody had a question, किसी ने hand raise किया था? No question? जी सर, मेरा एक सवाल है. जी जी सर, तो अगर ई यूनियन एफ के केस के अंदर यू विल ट्रीट दिस होल एज अ कंप्लीट इवेंट, लाइक अगर आपके पास 2 इवेंट्स, अगर आप उनका यूनियन ले लो, आपने उसको भी पूरे उसकी तरह एक सेपरेट इवेंट की तरह ट्रीट करना है, राइट? सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज एन इवेंट बाय डेफिनेशन इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. सो ई यूनियन एफ जो है वो भी एक सेट होगा, तो सिंस इट विल बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सो ई यूनियन एफ इज आल्सो एन इवेंट. डज दैट मेक सेंस? यस सर, थैंक यू. जी, ठीक है. So yeah, next time we will talk about some more detail. अभी exams तो हमने cover नहीं किए. Let me also talk about सर एक सवाल पूछूं? जी. तो मेरा सवाल ये था कि जो आपने फॉर्मूला दिया था n+r-1, if you're done with the class I'll ask this because ये थोड़ा सा trivial है. ठीक है, मैं let me just finish this in 1 minute and then you can ask that question. ठीक है. So if you have 2 events A and B, ये आपके पास सैंपल स्पेस है. If you have events A and B, A and B cannot simultaneously occur. Why? Because there is no point in sample space, no outcome in the sample space which is common between A and B. So we call that A and B are mutually exclusive. If A occurs, which means कि A के अंदर का कोई sample point होगा, then B must not occur. ये blue में से या आपका red में से कोई point होगा, या blue में से कोई point होगा, या उसके अलावा कोई point होंगे, जो ना A में है ना B में है. तो अगर ग्रीन अकर करते हैं तो A और B दोनों अकर नहीं कर रहे हैं. अगर रेड अकर करते हैं तो A अकर कर रहा है लेकिन B अकर नहीं कर रहा. If blue occurs, then B occurs, but A does not occur. There is no way that A and B both will occur. ठीक है. However, if you look at this figure, ये वाली फिगर को अगर देखें, इस फिगर में if number 3 occurs or number 4 occurs, then E and F both occur. Both of these events occur. ठीक है. एक ये केस ऐसा था ना जिसमें E भी अकर कर रहा है और F भी अकर कर रहा है अगर पॉइंट नंबर 3 अकर करता है. But in this example, A and B are mutually exclusive events. If one occurs, then the other necessarily will not occur. Okay? So I will finish the class here. We will have the definition of axioms of probability and some more set operations in the next class. Somebody had a question. Izaz, आपसे पहले किसी एक का क्वेश्चन था, वो प्लीज आप you can ask that question and then we can come back to your. सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन ये कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स का जो रैंडमनेस जनरेट करना और एक रियल लाइफ के अंदर जो रैंडमनेस होती है, क्या इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो तो किसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब वो जनरेट हो रही होती है, तो उसको प्रेडिक्ट करना कहीं ना कहीं पॉसिबल है. तो क्या इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन. कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू जो आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, इट्स नॉन ट्रिवियल, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट उससे एक रैंडम नंबर जनरेट करना. हमने अभी तक जो है वो रैंडम नंबर जो जनरेट करते हैं कंप्यूटर से उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, बट हमने अभी रैंडम वेरिएबल पढ़े नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर 2 के बाद हमने रैंडम वेरिएबल्स ही पढ़ने हैं, तो जब वो पढ़ेंगे तो दिस विल कम अप के इन थ्योरी तो आप रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक रैंडम नंबर को जनरेट करना जो है
it's extremely difficult accurately आप उसको नहीं कर सकते. हमें अभी कुछ पता नहीं रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है. तो सिर्फ मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं इतना बता सकता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम से जब आप एक रैंडम वेरिएबल को जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अप्रोक्सीमेशन हो रही होती है. इट कैन बी वेरी वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन, बट इट वुड स्टिल बी एन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. और सर मेरा ये एक क्वेश्चन था कि एक जो इवेंट है उसको लक ड्राइव करती है या फिर प्रोबेबिलिटी? एक इवेंट जो होती है वो उसको लक ड्राइव करती है या प्रोबेबिलिटी? इज दैट जी द सर. लक इज प्रोबेबिलिटी. लक इज लक अप्रोक्सीमेशन नहीं होती? लक जो है वो आप इंग्लिश में उसको कहते हैं, उसको मैथ्स में कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं. थैंक यू सर. ओके. somebody else had a question. वो कोई कह रहे थे कि पहले वाले मटेरियल के बारे में. यस सर. सर माय क्वेश्चन इज अबाउट द डाइस वाला क्वेश्चन, जिसमें जो डाइस के लिए एम्प्टी इवेंट का क्या मतलब है कि अगर इवेंट एम्प्टी हो डाइस के लिए, सो व्हाट डज दिस मीन? इवेंट अगर एम्प्टी हो डाइस के लिए, इवेंट अगर एम्प्टी नहीं, डाइस मिसाल के तौर पे कोई इवेंट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इवेंट डिफाइन करें डाइस के केस में कि जो एम्प्टी इवेंट हो. नहीं सर, इससे पहले वो क्वेश्चन किसी ने किया था कि कितने पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं सबसेट्स की, तो जी जी. आपने बताया था कि टू पावर n+1 पॉसिबिलिटीज होती है. पावर तो एन. उस जी सर, तो उसमें तो वो एम्प्टी भी आ जाता है ना कि जी जी. एक एम्प्टी हो. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक डाइस के केस में हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एम्प्टी क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं करेंगे, उसको कंपाउंड करके करना पड़ेगा, क्योंकि डाइस जब आप रोल करेंगे आपकी 6 में से कोई ना कोई तो पॉसिबिलिटी आएगी. ऐसे तो नहीं होगा कि कोई नंबर ही ना आए, राइट? ऐसे तो नहीं होगा कि कोई नंबर ही ना आए. इवेंट आप जो है उसके ऊपर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 2 या 3 आ जाए, दैट्स वन इवेंट. 2 और 3 इज वन इवेंट. सो क्वेश्चन आपका ये है कि डाइस रोल करते हैं और डाइस रोल के अंदर मैं एक इवेंट E1 डिफाइन कर देता हूँ कि आपके पास 2 या 3 आ जाए. तो या 2 आ जाए या 3 आ जाए. जाहिर है दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से एक ही आएगा. 2 या 3 में से कोई भी आ जाए तो इवेंट E1 अकर कर जाएगा. अगर मैं कहूँ कि E2 इज एन इवेंट के 1 2 3 5 और 6 आ जाए, तो इवेंट E2 एक ऐसा इवेंट है जो अकर करेगा जब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए अदर देन 4. इसका मतलब 4 के अलावा कुछ भी आ जाए तो E2 अकर कर जाएगा. 4 आ गया तो E2 अकर नहीं करेगा. ठीक है. एक और आपको मैं इवेंट बताता हूँ. E3 इज एन इवेंट कि आपके पास 5 और 6 आए. ठीक है. E3 इज एन इवेंट कि 5 और 6 आए, या 5 आ जाए या 6 आ जाए, E3 अकर कर जाएगा. 5 आया तो भी E3 अकर कर जाएगा, 6 आया तो भी E3 अकर कर जाएगा. Let me define an event E4 is equal to E1 union E3. E1 union E3. ठीक है. ये आपके पास क्या होगा? 2 3 5 6, यानी इसका मतलब है 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए तो E4 अगर कर जाएगा. ठीक है. Now I define an event E1 intersection E3. E1 intersection E3. ये क्या इवेंट है? ये खाली इवेंट. E5 will never occur. कभी ऐसा होगा नहीं कि डाइस कुछ भी ना शो करे, राइट? सो that's the empty set. That's the empty set. ओके सर, तो फिर इसके लिए भी डाइस के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 पावर n ही होगा. Of course 2 power n ही. ओके, थैंक यू. जी जी. सो और किसी का क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा सवाल था. जी तो जी. सर ऊपर जा सकते हैं, जो पहला सेक्शन था इस जब चैप्टर 1 हम खत्म कर रहे थे, जो फॉर्मूला था इट वाज n+r-1 चूज n, जो आपने बताया था ना. जी जी. आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि मैंने जहां पे भी देखा है ये है n+r-1 चूज r, तो ये दोनों इक्वल कैसे हैं?
जो आपने Choose बताया R, और जो R नहीं होगा, n plus 1 n plus r minus 1 n plus r minus 1 choose n होगा। चूज एन होगा। जी, मैं अब आपको अभी बता देता हूँ वो कैसे होगा। n plus r minus 1 choose n, ये होगा, ये आपने देखा होगा, हम भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैंने जो देखा था वो था n प्लस आर माइनस वन चूज आर, और जो दूसरी इसकी वर्जन थी वो थी n प्लस आर माइनस वन चूज n माइनस वन। या ये होगा, ये और ये बराबर दोनों होते ये दोनों आपने बताया। हाँ, ये दोनों हैं। आपने हाँ, बताया। ये यस। दोनों बराबर होते हैं। मुझे नहीं पता आपने वो कहाँ पे देखा है, मुझे बताइएगा। हो सकता है वहां पे वो नंबर ऑफ अर्न्स को n कह रहे हो और नंबर ऑफ बॉल्स को r कह रहे हो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। विदाउट नोइंग के आप कहाँ पे आपने देखा है, तो मैं कुछ कह नहीं। इंटरनेट पे देखा था मैंने। हाँ तो मुझे पता नहीं है आपने इंटरनेट पे कहाँ देखा था, तो मुझे आप जो है वो लिंक भेजें, या प्याजा ठीक पे है। पोस्ट, प्याजा पे पोस्ट कर दें उसका, या वैसे अगर पूछना है अभी बताना है तो अभी मैं इंटरनेट अभी खोल के देख। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, if that's जी, fine। प्याजा पे पोस्ट कीजिएगा, तो वहां पे कोई ना कोई जवाब दे देगा, मैं दे दूंगा या कोई और दे देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, नो वरीज। ठीक है। जी, और किसी का सवाल था? एनीवन एल्स हैड अ क्वेश्चन? किसी का सवाल नहीं? सर वो आपने जो y x प्लस वन किया था इक्वल टू y, और फिर उससे आपने ये ड्राइव किया था, वो आप वो वाला स्टेप फिर से करा सकते हैं, वो समझा सकते हैं मतलब दोबारा? यार वो आप वीडियो वैसे दोबारा जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये अब फायदा भी हो जाता है कि ऑनलाइन पे कि आप वो दोबारा से जाके देख सकते हैं, बुक से भी पढ़ लें। लेकिन ठीक आप ये देखें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो है ना नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंशिएट करना है। सही है। सो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस जो है आपके पास में, हमने ये पहले प्रूव कर दिया है कि ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, इसके इसके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस जो है वो ये n माइनस वन चूज r माइनस वन होती है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो है ये वो वाले सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन है। इसका मतलब है x1 जो है वो अ, वो होना चाहिए आपके पास 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नाउ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये करें कि आप एज्यूम करें कि वाई आई जो है वो एक्स आई प्लस वन कर दें। सो यानी इसका मतलब है कि मैं ये लेफ्ट साइड पे जो है ना ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें हर x1 के अंदर x1 x2 x3 x4 हर एक के अंदर मैं 1 1 ऐड कर देता हूँ। कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? r बार ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड पे भी मुझे r दफा 1 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये n प्लस r कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, सो y1 प्लस y2 ऑल द वे अप टू yr, दिस वुड बी इक्वल टू n प्लस r। अब ये देखें कि जितने इस एक्सप्रेशन के पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, विच मींस के वाईज जो है वो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि x आपका 0 भी हो सकता है, y अगर आपका जो है वो 1 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कोई हो सकता है, तो इसका मतलब है x आपका होल नंबर होगा, 0 से ऑनवर्ड होगा। ठीक है, तो जितने इस y वाली इक्वेशन के जितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होते हैं, उतने x वाली इक्वेशन के नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इमेजिन करें कि हमने ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी इसके हमने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन निकाल लिए थे। वो कैसे थे? इसके राइट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से एक माइनस करें, चूज इसके लेफ्ट साइड पे जितनी टर्म उसमें है। ठीक है, सो ये n प्लस आर माइनस उसमें से 1 करें और फिर चूज r माइनस 1, ये इस y वाले के पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू द नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ x वाली इक्वेशन। ठीक है, जी सर। सही है ना? जी थैंक यू सर। ग्रेट, ओके, किसी और का कोई सवाल हो?
सर आप प्रॉपर स्क्रॉल कर सकते हैं प्लीज। जी जी कर ली। सर ये जो हमने n-1 चूज r-1 किया था, जी जी और जो आपने जो लिखा हुआ है दिस इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, हाउ जी आर जी। वी गोइंग फ्रॉम, हाउ आर वी मेकिंग दैट कंक्लूजन? मतलब इससे तो स्पेसेस पिक कर रहे हैं हम, हाँ, तो इस हमने ये कहा था कि ये टोटल आपकी n-1 स्पेसेस है, ठीक है। और इन n-1 स्पेसेस में से आप r-1 स्पेसेस पिक करें और वहां पे वो डिवाइडर्स डाल दें जो आपके पास r-1 डिवाइडर्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली n-1 स्पेसेस में से आपने r-1 स्पेसेस पिक करनी है, और जो पिक कर ली है ना स्पेसेस, जो r-1 पिक कर ली है आपने, उन जगहों पे डिवाइडर्स डाल दें। जब आपने r- डिवाइडर्स, क्योंकि आपके पास r-1 है तो स्पेसेस भी r-1 ही पिक करनी पड़ेंगी ना। तो जब आपने r-1 स्पेसेस पिक की हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? वो n-1 चूज r-1, इतनी वेज में आप वो स्पेसेस पिक कर सकते हैं। अब जब आपके पास स्पेसेस पिक हो गई हैं, वहां पे आपने हर जो स्पेस पिक की है, हर एक स्पेस के ऊपर एक डिवाइडर डाल दें। इसका मतलब है आपने r-1 डिवाइडर डाल दी है। इसका मतलब है आपके पास r अलग-अलग जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो r डिविजन्स आपकी हो गई हैं, r कंटेनर्स आपके बन गए हैं, r बॉक्सेस, r अर्न्स वो बन गए हैं आपके, ठीक है। सो n-1 में r-1, n-1 चूज r-1 जब आपने किया, तो इसका मतलब है कि आपने उस, that is the number of ways that you can divide these balls into, these n balls into r different groups, या r different boxes में आप इनको डाल सकते हैं, such that कि किसी बॉक्स के अंदर जो है कोई एम्प्टी नहीं होगा, एक बॉल जरूर जाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने ये दो जो कंसेक्यूटिव बॉल्स हैं, मैं ये वाली कंसीडर करता हूँ, ये वाली, इनके बीच में मैं दो डिवाइडर नहीं डाल सकता, एक ही स्पेस है यहाँ पे, तो मैं एक ही डिवाइडर डाल सकता हूँ। अगर दो डिवाइडर डाल दिए तो इसका मतलब है कि वो दोनों डिवाइडर के बीच में कोई बॉल नहीं आएगी, लेकिन चूंकि मैं एक ही डिवाइडर डालूंगा, इसका मतलब है कि एनी टू डिवाइडर विल हैव एटलीस्ट वन बॉल बिटवीन देम। ओके सर, समझ आ गया, सही थैंक है यू। ना? तो जी, तो इसको इसको थोड़ा सा इसके साथ टाइम खुद भी स्पेंड कीजिएगा, घर पे भी बुक से भी देखिएगा, और या दिस शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस। सर मैंने अपलोड कर दिया है वो पियाजा पे, सो जी आप जी, जवाब दे देगा, अभी मैं क्लास जरा बंद कर दूंगा, उसके बाद ही जवाब ठीक है। देगा। आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग। थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी और का सवाल? ओके, सो शेयरिंग तो मैंने स्टॉप किया। आई विल क्लोज द क्लास नाउ इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चन। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू जी, बाय।